Hello class 2 children, good morning. So this is your Chanda madam, your EVS teacher. So children, today we are going to read Environmental Studies chapter number 3, that is cleanliness. So children, first of all you take out your textbook and keep in front of you. And after that you have to open chapter number 3, that is cleanliness. Cleanliness means, what is the meaning of cleanliness? Cleanliness means in Hindi it is Swachhata. Swachhata means you have to clean your surrounding clean, you have to clean your body clean, you have to use clean clothes. All these things come under cleanliness. Okay. Now see this chapter number 3. I think you all of you have opened chapter number 3, and see this one, chapter number 3, cleanly sorry cleanliness. Cleanliness. Cleanliness means to keep yourself clean, your surrounding clean. Okay. Now let me read the lesson and explain you in Hindi. Okay. So children, let me read. We all want to remain healthy. All of us want to remain healthy. Means हम सब क्या करना चाहते हैं? स्वस्थ रहना चाहते हैं. Healthy means what, children? Healthy means स्वस्थ. स्वस्थ means free from diseases. Means बीमार से मुक्त. टू स्टे हेल्दी एंड क्लीन वी मस्ट हैव गुड हैबिट. हमको स्वस्थ और साफ सुथरा रहने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? गुड हैबिट होना चाहिए. वी मस्ट एडॉप्ट गुड हैबिट. गुड हैबिट मीन्स व्हाट? अच्छी आदतें. ओके. सो अच्छी आदतें मीन्स टू गो टू बेड अर्ली एंड वॉक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, then brushing your teeth, taking bath, all this come under good habit. We must keep our body clean. हमें अपना शरीर को क्या रखना चाहिए? साफ रखना चाहिए. We must keep our body clean. Okay, by washing it, by taking bath. Then the next paragraph is, we should also go to the toilet every morning. See, we have to go to the toilet when we wake up early in the morning. We have to go to the toilet and do number 1 and number 2 to clear our stomach. हमको सुबह क्या करना चाहिए? उठने के साथ साथ टॉयलेट में जाना चाहिए, जिससे कि हमारा पेट साफ रहे. तो पेट साफ रहने से क्या होती है? It keep our stomach healthy. Okay, and also body healthy. We must wash our hand properly after using the toilet. हमें क्या करना चाहिए? टॉयलेट करने के बाद अपना हाथ को क्या है? साफ डिटॉल हैंड वॉश से धोना चाहिए. सी हियर, बिकॉज इट वॉश अवे आवर जर्म्स एंड डर्ट इन आवर हैंड. ओके. इससे हमारे हाथ में जो कीटाणु होते हैं, जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं जिसको हमें दिखाई नहीं देता, इट इज़ इनविजिबल, एंड दैट इज़ वॉश अवे बाय द डेटल हैंड वॉश एंड वाटर. वी मस्ट फ्लश द टॉयलेट आफ्टर यूजिंग इट. हमको टॉयलेट को यूज करने के बाद इसको फ्लश करना चाहिए. यहाँ ये फ्लशर है, इसको फ्लश करने से क्या होता है? इट कीप द टॉयलेट क्लीन. नेक्स्ट इज, डर्टी टीथ आर द होम फॉर द जर्म्स. जो डर्टी टीथ, हम दांत, हमारा जो टीथ है, ओके चिल्ड्रेन, उसमें क्या होता है? व्हेन वी ईट फूड, देन आफ्टर दैट what happen? Some particles of the foods remain in our teeth, and after some time germs and other things start germinating there. तो दांतों में हमारे क्या होते हैं? खाना खाने के बाद में जो रह जाता है उससे क्या होती है? जर्म्स वगैरह. GERM. जर्म्स मीन्स स्मॉल स्मॉल इंसेक्ट विच इज़ इनविजिबल. जो कि छोटे छोटे कीटाणु होते हैं, जो हम हमारे आँख से, नेकेड आई से नहीं दिखाई देते हैं, नंगी आँख से नहीं दिखाई देते हैं, वो दांतों में रहती है. सो वी मस्ट कीप आवर टीथ क्लीन. वी मस्ट ब्रश आवर टीथ एवरी मॉर्निंग एंड एट नाइट. तो हमको हमारा दांत 2 बार ब्रश करना चाहिए, मॉर्निंग में एंड बिफोर गोइंग टू द बेड एट नाइट. ओके. वी मस्ट रिंस आवर माउथ आफ्टर एवरी मील. हमको मील मीन्स हियर MEL. मील मीन्स भोजन. भोजन मीन्स खाना, फूड. You take breakfast, lunch and dinner, that is called meal. Okay. So after every meal we must rinse our mouth. Rinse means कुल्ला करना. You have to put water inside your mouth, and after that you have to throw it. Okay, that is called rinse.
Now in the next page, what is here? See, we must do some exercise or योगासन रेगुलरली. हमको क्या करना चाहिए? कुछ एक्सरसाइजेज जैसे पीटी वगैरह स्कूल में होती है ना, वो एक्सरसाइज, योगासन आपने देखा है ना टीवी में. योगासन वगैरह रेगुलरली करना चाहिए. रेगुलरली मीन्स लगातार हमेशा करना चाहिए, जिससे कि इट कीप आवर बॉडी हेल्दी एंड एक्टिव. ये हमारी बॉडी को क्या रखते हैं? स्वस्थ और एक्टिव रखते हैं. एक्टिव मीन्स चुस्त रखते हैं. ओके. वी मस्ट टेक बाथ डेली यूजिंग सोप. हमें डेली सोप लेके साबुन से क्या करना चाहिए? नहाना चाहिए. सी हियर, दिस बॉय इज बाथिंग, हैविंग बाथ. वी मस्ट यूज अ क्लीन टॉवल टू वाइप आवर सेल्फ. हमको अपना शरीर को साफ रखने के लिए हमें अपने शरीर को नहाने के बाद सुखाने के लिए क्या करना चाहिए? क्लीन ड्राई टॉवल को यूज़ करना चाहिए. मीन्स साफ सुथरा टॉवल मीन्स तौलिया को यूज़ करना चाहिए, जिससे हमारा बॉडी में क्या ना जाए? कीटाणु न जाए, जर्म्स ना जाए. ओके. नाउ नेक्स्ट पैरा इज बॉयज़ मस्ट हैव देयर हेयर कट रेगुलरली. जो बॉयज़ होते हैं, लड़के होते हैं, दे मस्ट कट देयर हेयर रेगुलरली इन द बार्बर शॉप. ओके. टू कीप द हेयर क्लीन. बाल को साफ रखने के लिए हमको दे मस्ट कट द हेयर रेगुलरली. इफ़ गर्ल्स हैव लॉन्ग हेयर दे मस्ट टेक गुड केयर ऑफ इट. अगर लड़कियों के बाल लंबे होते हैं तो उसको क्या करना चाहिए? धोना चाहिए, कंघी करना चाहिए. दे मस्ट कम इट, दे मस्ट वॉश इट फ्रिक्वेंटली एंड ऑल्सो कीप देम गुड केयर. ऑल्सो टेक गुड केयर ऑफ इट. ओके. उसको क्या करना चाहिए? साफ रखना चाहिए और उसका ध्यान रखना चाहिए. वी मस्ट कॉम आवर हेयर विथ ए क्लीन कॉम. हमको अपना बाल साफ कंघी से क्या करना चाहिए? कॉम करना चाहिए. यू मस्ट कॉम योर हेयर विथ ए क्लीन कॉम. ओके. नाउ नेक्स्ट इज वी मस्ट ट्रिम आवर नेल वंस ए वीक. हमको सप्ताह में एक बार हमको अपना नेल को क्या करना चाहिए? कट करना चाहिए. सो नेल कटिंग, सी दिस वन, दिस बॉय इज कटिंग इज नेल, ट्रिमिंग इट नेल. नाखून काटना को क्या बोलते हैं? ट्रिम बोलते हैं. TRIM, ट्रिम. ओके. तो सप्ताह में एक बार हमको क्या करना चाहिए? नेल काटना चाहिए. डट कोलेक्ट्स अंडर लॉन्ग नेल्स. जब नेल लंबा हो जाता है तो उसके नीचे क्या होते हैं? डट, DIRT, डट. डट मीन्स क्या होती है? गंदगी उसके नीचे कलेक्ट हो जाता है. कलेक्ट मतलब जमा हो जाती है. ओके. अंडर द लॉन्ग नेल डट्स कलेक्टेड. सो वी मस्ट ट्रिम द नेल वंस अ वीक. ओके. Now next paragraph is we must use a hanky to blow our nose. While blowing our nose we must use hanky. तो चिल्ड्रेन, जब हम नाक को साफ करते हैं तो हमको हैंकी यूज़ करना चाहिए. HANKY, हैंकी मीन्स रुमाल. वी मस्ट यूज इट व्हेन वी स्नीज और कॉफ. तो हमको जब भी हमको छींक आती है, स्नीजिंग अच्छी आती है, छींक ना, एंड कॉफ मीन्स खांसी. जब खांसी और छींक आती है तो वी मस्ट यूज hanky, a clean hanky, not a dirty hanky. We must use clean hanky. We should never prick our nose. prick मतलब यहाँ पर नाक में उंगली डालना. ओके. हमको नाक में उंगली नहीं डालना चाहिए, बिकॉज हमारे फिंगर्स में क्या होते हैं? जम्स होते हैं. एंड इफ वी prick inside our nose then germs and dirt goes inside our nose and we fall sick. अगर हम नाक में वो डालेंगे, उंगली डालेंगे, तो हम क्या हो जाएंगे? हमारा गंदगी और कीटाणु अंदर चले जाएंगे और हम बीमार पड़ जाएंगे. वी शुड क्लीन आवर ईयर विथ ए सॉफ्ट क्लॉथ और ए कॉटन बड. हमारा कान को हम क्या करना चाहिए? सॉफ्ट कॉटन क्लॉथ से और कॉटन बड से, जो कि आपको मिल जाती है रेडीमेड खरीदने से. कॉटन बड है, उससे क्या करना चाहिए? कान को साफ करना चाहिए, क्योंकि दिस ईयर, इनसाइड ईयर इज वेरी टेंडर. ओके. वेरी सॉफ्ट. द इफ वी यूज सम पिन एंड अदर थिंग, इट इज हर्ट द ईयर. वो कान को क्या करेगी? चोट पहुंचाएगी. इसीलिए हमको कान साफ करने के लिए बच्चों क्या यूज करना चाहिए? सॉफ्ट क्लॉथ, मुलायम कपड़ा और कॉटन बड यूज करना चाहिए. आपको पता नहीं है तो आप पेरेंट्स को पूछ लीजिए, मम्मी कॉटन बड किसको कहते हैं?
The next is we must take proper care of all part of our body. तो हमारे शरीर में जितने पार्ट्स है, आई, नोज, ईयर, हेयर, फिंगर्स, हैंड्स, लेग्स, foot, okay, every part of body, these are the part of the body and we must take care, proper care of them, because if we do not take care then it will fall sick, we will fall sick. अगर हम उसको अच्छी तरह ध्यान नहीं देंगे तो वो जगह हमारे क्या हो जाएगी, बीमार पड़ जाएगी. This will make us healthy when we we take proper care of all part of body. It will make our body healthy. Now here we have finished our chapter. Now we are going to do the exercise given in this chapter. Okay, so children, the exercise are answer these questions. इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए. क्वेश्चन नंबर 1 is what will happen if we do not keep our body clean. क्या होगा यदि हम अपना शरीर को साफ नहीं रखेंगे. If we do not take care of our body part, if we do not take bath, if we do not wash our hand regularly, then what will happen? Then the answer is we will fall sick. हम क्या हो जाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे. Okay, so we must take care of our body. Okay, we must keep our body clean. The next question is how many times a day do you brush your teeth? एक दिन में आप कितनी बार ब्रश करते हो? So how many times a day do you brush your teeth? So answer is twice a day. Okay, answer is twice a day. Twice means दो बार. We brush our teeth twice a day. Twice a day means दिन में दो बार हम ब्रश करते हैं, अर्ली इन द मॉर्निंग एंड बिफोर गोइंग टू द बेड. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज डू यू टेक बाथ विथ सोप एवरी डे. क्या आप डेली साबुन से नहाते हो? सो चिल्ड्रेन, डू यू टेक बाथ डेली विथ सोप? द आंसर इज येस आई डू. हाँ, हम क्या करते हैं डेली साबुन से विद डिटोल सॉप, गुड सॉप, डिटोल सॉप, लाइबल सॉप से हम क्या करते हैं, आई टेक बाथ डेली टू कीप माई बॉडी क्लीन. ओके, सी यू हैव टू टेक बाथ लाइक दिस. I have given the picture also, all picture are given here. Okay, when you fall sick, you sleep in the bed, then morning you are taking brushing your teeth, and before going to bed also you are brushing your teeth, and then you are taking bath here. Okay children, now next question is why should you flush the toilet after use. आपको टॉयलेट करने के बाद में टॉयलेट को फ्लश क्यों करना चाहिए, उसमें पानी क्यों डालना चाहिए? तो आंसर इज टू कीप द टॉयलेट क्लीन वी मस्ट फ्लश द टॉयलेट. टॉयलेट को साफ रखने के लिए हमको टॉयलेट का फ्लशर को यूज़ करना चाहिए, जिससे कि वहाँ से पानी आ जाए और टॉयलेट साफ हो जाए. ओके, वी मस्ट flush the toilet after using it. Okay, the next question is what keeps your body healthy and active. आपका शरीर को हेल्दी, स्वस्थ और एक्टिव, चुस्त तंदुरुस्त क्या चीज़ रखता है? द आंसर इज now the answer is cleanliness, healthy habit and exercise. Okay, साफ सुथरा रखना, हेल्दी हैबिट आपको एडप्ट करना और एक्सरसाइज करने से क्या रहेंगे, आप हेल्दी एंड एक्टिव रहेंगे. यू हैव टू एडप्ट द हैबिट ऑफ क्लीनलीनेस, हेल्दी हैबिट एंड यू हैव टू डू रेगुलर एक्सरसाइज, देन ओनली यू could keep your body healthy and active. Now next question is what do you use when you sneeze or cough. जब आप स्नीज करते हो, स्नीज में छींकते हो और कफ करते हो, खांसते हो, तो आप क्या यूज़ करते हो? दैट टाइम यू यूज़ hanky. Okay, we use hanky means we use clean hanky while coughing and sneezing. Then
Then next one is, see all the children, all the picture is given here, how to flush here, how to use hanky, and then all these exercises you can do. These are exercises. You are flushing the toilet, and here is one more picture. This is you are using hanky, okay, while coughing and sneezing. The next question is, fill in the blanks. Fill in the blanks with the word from the box. Here is in this box given some words. यहाँ पर इस word दिया under, care, healthy, rinse, clean. तो in these blanks you have to fill up these words. Okay. So number one is to stay dash and dash. We must have good habit. हमको क्या रहने के लिए और क्या करने के लिए हमको क्या करना चाहिए? गुड हैबिट हमारे पास होना चाहिए. तो क्या द आंसर इज हेल्दी एंड क्लीन. टू स्टे हेल्दी एंड क्लीन वी मस्ट हैव गुड हैबिट. हमको हेल्दी रहने के लिए और साफ रहने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? अच्छी आदत होना चाहिए, गुड हैबिट होना चाहिए. नंबर टू इज वी मस्ट डैश आवर माउथ आफ्टर एवरी मील. हमको हर मील खाने के बाद में, भोजन करने के बाद में हमको क्या करना चाहिए? रिंस करना चाहिए, मीन्स कुल्ला करना चाहिए. मुंह में पानी डाल के बाहर फेंकना चाहिए, मुंह से फेंकना चाहिए, जिससे कि डर्ट बाहर, जो भी डर्ट्स वगैरह है, जो भी गंदा चीज़ है वो मुंह से बाहर चला जाए. नंबर थ्री इज डर्ट कलेक्ट्स डैश लॉन्ग नेल. डर्ट मीन्स गंदगी किस में कलेक्ट होता है, जमा होता है? लॉन्ग नेल. लॉन्ग नेल के किस में जमा होता है? द आंसर इज अंडर. अंडर मतलब नीचे. ओके. नाउ नंबर फोर इज वी मस्ट टेक प्रॉपर डैश ऑफ आवर बॉडी. हमें अपना बॉडी का क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? केयर करना चाहिए. केयर मीन्स देखभाल करना चाहिए. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर थ्री. टिक द करेक्ट स्टेटमेंट एंड क्रॉस द इनकरेक्ट वन. यहाँ पर जो लेसन से दिया गया, आपका जिस चैप्टर से दिया गया कुछ स्टेटमेंट है, कुछ सेंटेंस है जो कि आपने लेसन में पढ़ा, तो उसके हिसाब से आपको बोलना है कि ये सही है या गलत है. इफ़ द स्टेटमेंट इज करेक्ट देन यू हैव टू put tick mark. If the statement is wrong then you have to put cross mark. Okay. Now number one is trim your nail once a month. एक महीना में एक बार आपका क्या है? नेल को, नाखून को काटना चाहिए. सो चिल्ड्रेन, एक महीने में काटना चाहिए, 1 वीक में काटना चाहिए, 1 वीक में. सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. सो द स्टेटमेंट इज रॉन्ग. हियर इज क्रॉस मार्क. ओके. नाउ नेक्स्ट वन इज नंबर टू. क्लीन योर ईयर विथ अ पिन. आपके कान को पिन से साफ करना चाहिए. सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. हमको कपड़े, कॉटन का सॉफ्ट कॉटन क्लॉथ एंड जो बर्ड से, ईयरबड से हमको साफ करना चाहिए. सो दिस वन इज ऑल्सो रॉन्ग. ओके. नंबर थ्री, गो टू द टॉयलेट एवरी मॉर्निंग. तो नंबर थ्री का हमको डेली सुबह टॉयलेट में जाना चाहिए. द आंसर इज द आंसर इज राइट. ओके. मिस्टेक मार्क से हमको डेली टॉयलेट में जाना चाहिए. नंबर फोर इज डू नॉट कवर योर माउथ व्हेन यू कफ. आपको कॉफिंग करते हुए, खांसते हुए मुंह में हाथ नहीं डालना चाहिए या हैंकी से मुंह को ढकना नहीं चाहिए. सो द आंसर इज व्हाट? रॉन्ग. ओके. नंबर फाइव, हैव ए बाथ एवरी डे विथ सोप. आपको डेली साबुन से नहाना चाहिए. द आंसर इज राइट. हाँ, हमको क्या करना चाहिए? डेली बाथिंग करना चाहिए. सो योर टिक मार्क. सो चिल्ड्रेन, यू हैव टू फिल अप दिस blanks and also fill up this tick mark and cross mark in your टेक्स्ट बुक. ओके. आपको इसको टेक्स्ट बुक में भी भरना है. यह आपके लिए क्या है? होमवर्क है. ओके. द नेक्स्ट पेज इज सी एक्टिविटीज. दिस एक्टिविटीज, व्हेन डू यू डू ऑल दिस एक्टिविटीज. ये काम आप कब करते हैं? राइट
द टाइम व्हेन यू डू ऑल दिस थिंग बिलो गिवन बिलो। तो ये जो नीचे दिया गया है ये काम आप कौन सा समय में करते हैं, कौन सा टाइम में करते हैं, यहाँ आपको टाइम लिखना है। ओके, व्हेन डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग, आप सुबह कब उठते हैं। तो मैक्सिमम चिल्ड्रन क्या है, दे वॉक अप एट 6 AM। तो ये आंसर इज 6 AM। ओके, नंबर 2, व्हेन डू यू हैव ए बाथ, आप कब नहाते हैं। द आंसर इज 7 AM। ओके, आपका मैक्सिमम बच्चे 7 AM में क्या करते हैं, दे हैव योर बाथ। ओके, देन व्हेन डू यू गो टू स्कूल, आप कब स्कूल जाते हैं। द आंसर इज 8 7 एट 7:45 AM, क्योंकि आप 7:45 में आपका स्कूल कितना बजे लगते हैं, योर स्कूल स्टार्ट एट 8 AM। सो बिफोर 15 मिनट यू रीच एट योर स्कूल, आप 15 मिनट पहले आप स्कूल में पहुंचते हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन डू यू कम बैक फ्रॉम द स्कूल, आप स्कूल से कब वापस आते हो, रिटर्न होते हो। द आंसर इज 2 PM, मीन्स 2 बजे आपकी स्कूल छुट्टी होती है, तो दैट टाइम यू रिटर्न फ्रॉम योर स्कूल। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन डू यू डू योर होमवर्क, आप अपना होमवर्क, होम असाइनमेंट, गृह कार्य कब करते हैं। एट, द आंसर इज 6 PM। ओके, 6 PM मीन्स आप 6 बजे, रात के 6 बजे आप पढ़ने बैठते हो और होमवर्क करते हो। ओके, व्हेन डू यू गो टू प्ले, आप खेलने कब जाते हो, स्कूल से आने के बाद आप खेलने कब जाते हो। व्हेन आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम द स्कूल you have your lunch and then after that sorry, then when do you go to play, उसके बाद आप खेलने कब जाते हो। द आंसर इज 3 PM। मैक्सिमम चिल्ड्रन गो टू प्ले एट 3 PM, मीन्स 3 बजे आप पार्क वगैरह में खेलने के लिए आते हो। ओके, नाउ लास्ट वन इज व्हेन डू यू गो टू बेड, आप रात को सोने कब जाते हो। व्हेन डू यू स्लीप एट नाइट, द आंसर इज 9 PM, आप रात के 9 बजे क्या करते हो, सोते हो। सो चिल्ड्रेन, thanks for watching. Stay safe, wash your hand regularly, and also maintain social distance to keep yourself safe from the pandemic COVID-19. Okay, and watch this video again and again. Also write down all the question answer given. I have already solved all the question answer here. Okay, so you have to note down it in your notebook and plus textbook, and after that you have to submit your notebook in the school through your parents. Okay, then I will do correction it and again return to you. Okay, on Tuesday and Friday we are doing this thing. ट्यूसडे में आपको पेरेंट्स के हाथों में क्या करना है, नोटबुक को भेजना है। फिर फ्राइडे में हम उसको फिर क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे। आपको जितना भी ये क्वेश्चन आंसर सॉल्व करके दिया है उसको लिखना है, नोटबुक में लिखना है, अपना कॉपी पर लिखना है और पेरेंट्स के थ्रू से आप स्कूल में भेजेंगे। कौन सा डे में, ट्यूसडे एंड फ्राइडे। ओके चिल्ड्रेन, बाय चिल्ड्रेन।